Hello students, welcome in Advaita Education channel. Today we are going to solve practice set 5.3. Question number 1. Diagonals of a rectangle ABCD intersect at point O. ये ABCD ये हमारा रेक्टेंगल है, उसके डायगोनल्स ये क्या हो गया डायगोनल. डायगोनल्स आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट O. कौन से पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो O पॉइंट में. इफ AC इज इक्वल टू 8, ये AC जो पूरा है उसका डिस्टेंस है 8 सेंटीमीटर. देन फाइंड BO एंड इफ एंगल CAD इज इक्वल टू 35 डिग्री, देन फाइंड एंगल ACB. मीन्स ये आपको एंगल फाइंड आउट करना है एंड BO कितना है वो भी आपको फाइंड आउट करना है. फर्स्ट राइट डाउन व्हाट इज गिवन. ABCD is a rectangle. रेक्टेंगल है मीन्स वो पैरेललोग्राम भी है. therefore ABCD is also a parallelogram. Diagonals of parallelogram intersect each other. Diagonals of parallelogram are intersect each other. Intersect each other. Therefore OA is equal to OC is equal to half of AC. ये OA आधा है, OC आधा है. ये हाफ हाफ कैसे बन गया. ये पूरा AC है उसका हाफ किया तो ये दो हाफ हाफ पार्ट्स बन गए. therefore OA is equal to OC is equal to half of AC and OB is equal to OD is equal to half of BD. OB is equal to OD is equal to half of BD. This is your equation number 1. And rectangle ABCD is also a rectangle. Diagonal AC ये AC जो डायगोनल है इज इक्वल टू डायगोनल BD बिकॉज डायगोनल्स आर इक्वल. AC कितना दिया है 8 तो BD भी कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. Diagonals of rectangle are congruent. Write down the reason. Diagonal of rectangle are congruent. Therefore BO is equal to half of BD. BO is equal to half of BD. हमें BO फाइंड आउट करना है ना. हाफ BD इज हाउ मच 8. 8 का हाफ कितना होता है 4 सेंटीमीटर. therefore BO is equal to 4 सेंटीमीटर आ गया हमारा. नाउ सेगमेंट AB is parallel to segment DC and segment AC is the transversal segment. Segment AB parallel to DC and AC is the transversal. Therefore angle CAD
congruent to angle ACB. Now see, A and D are parallel and AC is the transversal. That's the angle CAD means ये जो angle 35 दिया है congruent to angle ACB, ये जो एंगल हमें फाइंड आउट करना है, ये दो एंगल कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट. व्हाई? बिकॉज पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल मीन्स दीज आर द अल्टरनेट एंगल्स. देयरफॉर एंगल CAD is equal to angle ACB is equal to 35 degree. Because angle CAD is equal to 35 डिग्री गिवन, ये हमें गिवन है. तो दोनों वैल्यूज हमने फाइंड आउट किए. हमें क्या क्या फाइंड आउट करना था? फाइनल आंसर BO is equal to 4 centimeter and angle ACB is equal to 35 degree. Question number 2. In a rhombus PQRS, if PQ is equal to 7.5, then find the QR, and if angle QPS means QPS, this angle is 75 degree, then find the measures of angle PQR. PQR means ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क दे रही हूँ. एंड एंगल SRQ, ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है. एंड QR भी आपको फाइंड आउट करना है. PQRS is a rhombus. Solution: PQRS is a rhombus. This is given. PQRS is a rhombus. That's why PQ is equal to QR is equal to RS is equal to SP. All the sides have equal. See, in a rhombus all sides are equal length. All sides equal हो गए तो लेंथ भी कैसे हो गई? इक्वल हो गई. PQ कितना है? 7.5. और हमें क्या फाइंड आउट करना था? QR. ये 7.5 है तो QR भी क्या हो जाएगी? QR is also 7.5 centimeter. Every rhombus is a parallelogram. Every rhombus is a parallelogram. Therefore PQRS is also a parallelogram. PQRS क्या है? rhombus है, means ये क्या है? parallelogram भी है. Now see, angle PQR, angle PQR means this angle plus angle QPS. Angle QPS means this angle is equal to 180 degree. Why? Because these are the adjacent angles. What is the reason? Adjacent angles. Adjacent angles. But you know the angle QPS. QPS आपको कितना दिया है? 75 डिग्री. एंगल PQR प्लस यहाँ की वैल्यू आपको पता है 75 इज इक्वल टू 180 डिग्री. Therefore angle PQR is equal to 180 minus 75. 180 minus 75 is 105 degree. Angle PQR. Angle PQR ये कितना हो गया? 100 ये हो गया 105. 105. Similarly Q and R are also adjacent angles. ये भी कैसे एंगल्स है? adjacent angles. adjacent angles means ये दोनों की एडिशन कितनी होगी? 180. 105 माइनस 180 75 आ जाएगा. और ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो आप. P एंड R ये कैसे एंगल्स है? अपोजिट एंगल्स. अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. तो ये 75 डिग्री है तो ये भी R भी कितना हो जाएगा? 75 डिग्री. हम अपोजिट एंगल्स वाला ही सॉल्व करेंगे. इट्स इजी. Therefore angle QPS congruent to angle SRQ opposite
angles of a parallelogram are congruent. Angle QPS is equal to angle SPQ. एंगल SPQ कितना हो जाएगा 75 डिग्री बिकॉज एंगल QPS इज इक्वल टू 75 डिग्री. दिस इज गिवन. ये क्या है आपका गिवन. देन योर फाइनल आंसर. क्या क्या फाइंड आउट करना था हमें. QR फाइंड आउट करना था. कितना आ गया 7.5. QR इज इक्वल टू 7.5 एंड एंगल PQR भी फाइंड आउट करना था. PQR इज इक्वल टू 105 डिग्री एंड ये भी फाइंड आउट करना था. एंगल SPQ इज इक्वल टू 75 डिग्री. Question number 3. Diagonals of a square IJKL intersect at point M. Find the measures of angle IMJ, angle JIK and angle LJK. See. IJKL. This is a square. ये क्या है स्क्वायर है. एंड डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर इंटरसेक्ट एट पॉइंट M. कौन कौन सा डायगोनल है. IK एक डायगोनल है एंड LJ एक डायगोनल है. वो दोनों डायगोनल किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं मीट हो रहे हैं पॉइंट M पे. और ये जो रिमेनिंग एंगल्स है उसके हमें मेजर्स फाइंड आउट करने. अब ये स्क्वायर है मीन्स ये सब नाइन्टी डिग्री है. एंगल IJKL ये सब क्या है 90 डिग्री है. Now see the solution. Square IJKL is a square in which diagonal IK and diagonal LJ intersect each other at point M. Diagonals of a square are perpendicular to each other. Diagonals of a square are perpendicular to each other. Therefore, angle IMJ is equal to 90 degree. IMJ means this angle is 90 degree. What is the reason? Diagonals of a square are perpendicular to each other. Also, angle JIK is equal to 90 degree. Angle JIL ये कितना है 90 डिग्री. एंड एंगल IJK this is also 90 degree. Angles of a square are 90 degree. What is the reason? Angles of a square के एंगल्स कितने रहते हैं 90 डिग्री. Now therefore angle JIK ये JIK ये क्या हो गया ये डायगोनल है इसलिए ये एंगल हाफ हो गया. एंगल JIK
आई के एंगल जे आई के इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जे आई एल। ये जे आई के एंगल किसका हाफ एंगल है? जे आई एल का, जे आई एल का हाफ ऑफ एंगल जे आई के। एंगल एल जे के एंगल एल जे के इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल आई जे के। एल जे के मीन्स ये एंगल हाफ ऑफ एंगल आई जे के, ये आई जे के एंगल का ये हाफ एंगल है। What is the reason? Diagonals of a square bisect opposite angles. Therefore, angle JIK angle JIK is equal to, ये पूरा एंगल 90 है, हाफ ऑफ 90 कितना होता है? 45। एंगल JIK इज इक्वल टू हाफ ऑफ 90। हाफ ऑफ 90 मीन्स कितना होगा वो? 45 डिग्री। देयरफॉर एंगल JIK इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये हमें फाइंड आउट करना था एंगल JIK। ये एक हो गया, कितना आ गया ये? 45 डिग्री। अब हमें कौन सा एंगल फाइंड आउट करेंगे हम? एंगल LJK। LJK सेम LJK, ये जे एंगल कितना है? 90 है। 90 का हाफ कितना हो जाएगा? 45। एंड एंगल LJK is equal to half of 90. Half of 90 is 45. Therefore, angle LJK is equal to 45 डिग्री। ये भी एंगल फाइंड आउट हो गया 45 डिग्री। एंड IMJ कितना है? 90 डिग्री। लास्ट में आंसर लिखेंगे एंगल IMJ is equal to 90 डिग्री। ये एंगल IMJ is equal to 90 डिग्री। एंगल JIK is equal to 45 डिग्री and angle LJK is equal to 45 degree. Now next question. Diagonals of a rhombus are 20 centimeter and 21 centimeter respectively. Then find the sides of a rhombus and its perimeter. यहाँ पर rhombus का नाम नहीं दिया है, आप अपने मन से कौन सा भी नाम ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने rhombus लिया है PQRS और उसका एक जो डायगोनल है वो है 20 सेंटीमीटर एंड दूसरा है 21 सेंटीमीटर। सपोज ये डायगोनल है 20, ये SQ है 20 एंड PR है 21 सेंटीमीटर। और हमें क्या करना है? उसके ये जो साइड्स है मीन्स PQ, QR, RS, PS ये फाइंड आउट करने हैं। एंड पेरीमीटर मीन्स ये सब साइड है उसकी एडिशन करेंगे तो हमें पेरीमीटर मिल जाएगी, वो हमें फाइंड आउट करना है। नाउ सी सॉल्यूशन। PQRS is a rhombus in which diagonals PR is diagonal and QS diagonal QS intersect each other at point A। ये दोनों डायगोनल कौन से पॉइंट पर मीट हो रहे हैं? A पॉइंट पर। यहाँ पर दो हमें डायगोनल्स दिए, एक है 20 और दूसरा है 21 सेंटीमीटर। तो हमने कौन सा 21 लिया है? सपोज PR इज इक्वल टू 21 एंड QS is equal to 20 centimeter. Now say diagonals of a rhombus are perpendicular to each other. Diagonals of a rhombus are perpendicular to each other. तो ये टोटल PR कितना है हमारा? 21। 21 का हाफ कितना हो जाएगा? 10.5 एंड 10.5।
10.5 प्लस 10.5 21। और ये QS कितना है 20, 20 का हाफ कितना होगा 10 10, ये हो जाएगा 10, ये भी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। मीन्स सी PA इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू हाफ ऑफ PR। ये PR का हाफ करेंगे तो PA एंड AR सेम आ जाएगा। सिमिलरली QA इज इक्वल टू AS, QA इज इक्वल टू AS इज इक्वल टू हाफ ऑफ QS, QA is equal to S is equal to half of QS. What is the reason? Diagonals of rhombus are perpendicular to each other. This is your equation number 1. And angle PAQ is equal to 90 degree. Angle PAQ means this angle is 90 degree. Diagonals of rhombus are perpendicular to each other. अभी हमें क्या करना है, साइड फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर आप कौन सा भी, यहाँ पर 1 2 3 4 4 ट्रायंगल फॉर्म हुए हैं, उसमें से हम लेंगे ट्रायंगल PAQ। ये ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल PAQ। ये ट्रायंगल हम कंसिडर करेंगे। इन ट्रायंगल PAQ, अभी ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्रायंगल PAQ बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। अभी ये 90 डिग्री है तो हाइपोटेनस कौन सा होगा, PQ, PQ स्क्वायर, PQ स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर प्लस AQ स्क्वायर, PA स्क्वायर प्लस AQ स्क्वायर। नाउ PA स्क्वायर, PA कितना है, हाफ ऑफ PR, तो हम क्या लेंगे, PA की वैल्यू हाफ ऑफ PR, हाफ ऑफ PR स्क्वायर प्लस AQ मीन्स QA की वैल्यू क्या लेंगे, हाफ ऑफ QS, हाफ ऑफ QS स्क्वायर। नाउ PR कितना है, PR 21, हाफ ऑफ 21 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ QS कितना है 20, हाफ ऑफ 20 स्क्वायर। हाफ ऑफ 21 कितना होता है, यहाँ पर हमने लिखा था 10.5, 10.5 स्क्वायर प्लस 20 का हाफ कितना होता है 10, 10 का स्क्वायर, 10.5 का स्क्वायर होता है 110.25 प्लस 10 का स्क्वायर है 100। 10.5 इंटू 10.5 करना है आपको। हाँ, 10.5 का स्क्वायर, 1 यहाँ पर है डेसिमल पॉइंट, मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपका आंसर आएगा 11025। और 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट देना है, मतलब आपका डेसिमल पॉइंट यहाँ आ जाएगा। मीन्स आपका आंसर होगा 110.25 प्लस 100, 110.25 प्लस 100 आ जाएगा 210.25। ये हो गया PQ स्क्वायर। अभी 210.25 ये किसका स्क्वायर है, 14.5 का, 14.5 का स्क्वायर है। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, तो PQ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 14.5। यहाँ पर रीजन लिखना है, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट
of both sides, taking square root of both sides. Therefore, PQ, ये PQ की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 14.5. 14.5. Now one more property. In rhombus all sides are equal in length. सब साइड्स की लेंथ कैसी रहती है rhombus में equal. ये 14.5 है, ये भी 14.5, 14.5, 14.5. मीन्स PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू SP. सब कितना होगा 14.5. Therefore PQ is equal to QR is equal to RS is equal to SP is equal to 14.5. और रीजन क्या है आपका रोम्बस इन रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ. हमें साइड्स फाइंड आउट करनी थी तो वो साइड क्या आ गई सब 14.5. और हमें क्या फाइंड आउट करने हैं उसकी पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 4 इंटू साइड. ये फॉर्मूला है 4 इंटू साइड कितनी आ गई हमारी 14.5. 14.5 मल्टीप्लाई बाय 4 आएगा आपका 58 सेंटीमीटर. मीन्स आंसर साइड ऑफ रोम्बस is 14.5 centimeter and perimeter is 58 centimeter. Now next question number 5. State with reasons whether the following statement are true or false. Every parallelogram is a rhombus. False. Why this statement is false? Because in parallelogram only opposite sides are equal, whereas in rhombus all the sides are in equal length. पैरेललोग्राम में सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल रहते हैं, पर रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल रहते हैं. हमने पहले के क्वेश्चन में देखा था ऑल साइड्स इक्वल रहते हैं रोम्बस में. तो उसका रीजन होगा इन अ पैरेललोग्राम only opposite sides are equal, whereas in rhombus all the sides are in equal length. Next question. Every rhombus is a rectangle. False. Because in a rhombus it is not necessary that all the angles are measures 90 degree, whereas in rectangle all the angles measures are in 90 degree. rhombus में ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि जो सब एंगल्स है वो 90 डिग्री होने चाहिए, पर रेक्टेंगल में इट्स कंपलसरी ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री. तो ये स्टेटमेंट क्या है फॉल्स. स्टेटमेंट इज फॉल्स और उसका रीजन है इन अ रोम्बस इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल एंगल्स आर ऑफ मेजर्स 90 डिग्री, whereas in a rectangle all angles are of measure 90 degree. Next question है every rectangle is a parallelogram. Answer is true. Opposite sides of a rectangle are congruent and parallel. तो every rectangle is a parallelogram हो सकता है. Statement is true. और true क्यों है वो भी हमें लिखना है. Why? Because opposite sides of a rectangle are congruent and parallel. और parallelogram में भी वही. Next है every square is a rectangle. True. ये स्टेटमेंट कैसा है ट्रू है क्योंकि स्क्वायर में भी ईच एंगल 90 डिग्री होता है और रेक्टेंगल में भी सब एंगल्स 90 डिग्री होते हैं. देन every angle of a square is a right angle. Next है every square is a rhombus. This is also true because all sides of a square are congruent and rhombus के भी all sides कैसे रहते हैं congruent.
ये स्टेटमेंट ट्रू है बिकॉज ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर कॉन्ग्रुएंट, और रोम्बस के भी ऑल साइड्स कैसे रहते हैं, कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल, फॉल्स। रीजन क्या होगा उसका, पैरेललोग्राम इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री। पैरेललोग्राम में ऐसा ये नहीं है कि ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री, बट रेक्टेंगल में कंपल्सरी ऑल द एंगल्स 90 डिग्री ही चाहिए। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ये स्टेटमेंट फॉल्स है और उसका रीजन है, इन अ पैरेललोग्राम इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, hence every parallelogram is not a rectangle. Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe my channel for more videos.